We will formulate a plan, Purvodaya, for the all-round development of the eastern region of the country, covering Bihar, Jharkhand, West Bengal, Odisha, and Andhra Pradesh. This will cover human resource development, infrastructure, and generation of economic opportunities to make the region an engine to attain Vikasit Bharat. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को जो बजट में रिटर्न गिफ्ट दिया है, उसके बाद अब चंद्रबाबू नायडू की खुशी का ठिकाना नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका दैट न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। तो मोदी सरकार ने आज जो बजट पेश किया है, उसके लिए दरअसल जिस तरीके से प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है और उसी कड़ी में आंध्र प्रदेश के लिए जो केंद्र सरकार ने खजाना खोला है, उसके बाद अब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने खुशी जाहिर की है। दरअसल आंध्र प्रदेश के लिए जो 15,000 करोड़ रुपए की घोषणा वो बजट में की गई है, चंद्रबाबू नायडू ने उस घोषणा के लिए अब आंध्र प्रदेश के लोगों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थैंक यू कहा है। जी हां, चंद्रबाबू नायडू ने एक्स पर एक पोस्ट की है जिसमें लिखा कि नरेंद्र मोदी जी, माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, हमारे राज्य की जरूरतों को पहचानने और वित्त वर्ष 2024 से 25 के केंद्रीय बजट में राजधानी पोलावरम, औद्योगिक नोड्स और एपी में पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए केंद्र का ये समर्थन आंध्र प्रदेश के पुनर्निर्माण में काफी मदद करेगा। इस प्रगतिशील और आत्मविश्वास बढ़ाने वाले बजट की प्रस्तुति के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ये कहते हुए चंद्रबाबू नायडू ने लिखा #आंध्र प्रदेश बैक ऑन ट्रैक। तो ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की तरफ से किया गया पोस्ट है। यानी इस पोस्ट में जो कुछ भी उन्होंने लिखा है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि चंद्रबाबू नायडू सरकार से जो डिमांड कर रहे थे इस बजट में, वो डिमांड अब उनकी पूरी होती हुई आंध्र प्रदेश के लिए कम से कम नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि दरअसल एनडीए की सहयोगी है चंद्रबाबू नायडू की पार्टी। तो ऐसे में आंध्र प्रदेश के लिए यह खजाना वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खोल दिया है। और वहीं पर न सिर्फ आंध्र प्रदेश बल्कि बिहार के लिए भी सरकार ने दिल खोलकर घोषणाएं की हैं। बिहार को जो तोहफा इस बजट में मिला है, जिस तरीके से वित्त मंत्री ने ये ऐलान किया कि बिहार को न सिर्फ नए एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज मिलेंगे। We will formulate a plan, Purvodaya, for the all-round development of the eastern region of the country, covering Bihar, Jharkhand, West Bengal, Odisha, and Andhra Pradesh. This will cover human resource development, infrastructure, and generation of economic opportunities to make the region an engine to attain Vikasit Bharat. On the Amritsar-Kolkata industrial corridor, we will support development of an industrial node at Gaya. This corridor will catalyze industrial development of the eastern region. The industrial node at Gaya will also be a good model for developing our ancient centers of cultural importance into future centers of modern economy. This model shall showcase Vikas B, Virasat B in a growth trajectory. We will also support development of road connectivity projects, namely 1. Patna-Purnia Expressway, 2. Buxar-Bhagalpur Expressway, 3. Bodh Gaya, Rajgir, Vaishali and Darbhanga spurs, and 4. Additional 2-lane bridge over River Ganga at Buxar at a total cost of 26,000 crore rupees.
Power projects, including setting up of a new 2,400 megawatt power plant at Pir Painti, will be taken up at a cost of 21,400 crore rupees. New airports, medical colleges, and sports infrastructure in Bihar will be constructed. An additional allocation to support capital investments will be provided. The requests of Bihar government for external assistance from multilateral development banks will be expedited. Andhra Pradesh Reorganization Act. Our government has made concerted efforts to fulfill the commitments in Andhra Pradesh Reorganization Act. Recognizing the state's need for the capital, recognizing the state's need for a capital, we will facilitate special financial support through multilateral development agencies. In the current financial year, 15,000 crore rupees will be arranged with additional amounts in future years. Our government is fully committed to financing and early completion of the Polavaram irrigation project, which is the lifeline for Andhra Pradesh and its farmers. This will facilitate our country's food security as well. Under the Act, Andhra Pradesh Reorganization Act, for promoting industrial development, funds will be provided for essential infrastructure such as water, power, railways, and roads in Kopparthi node on the Visakhapatnam-Chennai industrial corridor and Varavakal node on the Hyderabad-Bangalore industrial corridor. An additional allocation will be provided this year towards capital investment for economic growth. Grants for backward regions of Rayalaseema, Prakasham, North Coastal Andhra, as stated in the Act, will be provided. जो पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है उसका निर्माण होगा, उसको मंजूरी मिली है। बिहार में महाबोधि और विष्णुपद कॉरिडोर का निर्माण होगा। इसके अलावा बिहार में नया एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज बनाएंगे और साथ ही सिंचाई के लिए 11,500 करोड़ रुपए का ऐलान। बिहार में हाईवे के लिए 26,000 करोड़ रुपए का ऐलान जो है वित्त मंत्री ने किया। और जब ये ऐलान वित्त मंत्री ने किया तो उसके बाद बिहार में जो एलजेपी के नेता हैं चिराग पासवान, उन्होंने दरअसल बिहार को जो तोहफा केंद्रीय वित्त मंत्री ने दिया है उस पर खुशी जाहिर की है। लेकिन वहीं एनआई से बातचीत करते हुए चिराग पासवान ने विशेष राज्य के दर्जे को लेकर जो बिहार में बहस छिड़ी हुई है, जो सियासी जंग छिड़ी हुई है, उसको लेकर दरअसल उल्टा विपक्ष को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि बिहार को आज विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो उसकी जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि यूपीए की सरकार ही है। चिराग ने विपक्ष को आईना दिखाते हुए कहा कि जो कह रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, ये वही विपक्ष के लोग हैं जिनकी सरकार में, यूपीए की सरकार में नीति आयोग में इस तरह के प्रावधान किए गए थे जिसके बाद किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। वहीं बजट पर चिराग पासवान ने कहा कि बिहार प्रथम, बिहारी प्रथम, ये कहते हुए उन्होंने इस विशेष पैकेज के लिए खुशी जाहिर की है। पीएम मोदी और वित्त मंत्री का धन्यवाद कहा है। किस तरीके से विपक्ष पर जमकर बरसे चिराग पासवान, सुनिए। इस बात का हो हल्ला मचाते हैं
कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, ये वही विपक्ष के लोग हैं जिनके पास ये जानकारी का अभाव है कि इन्हीं की सरकार में, यूपीए की सरकार में मनमोहन सिंह जी के दौरान ही नीति आयोग में इस तरीके के प्रावधान किए गए थे जिसके बाद किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलना लगभग नामुमकिन के करीब हो गया था। बहरहाल हम लोग की मांग रही थी कि जब तक विशेष राज्य के दर्जे का दर्जा हम लोग को नहीं मिलता, स्पेशल पैकेजेस हम लोग को दिए जाएं। मैं धन्यवाद करूंगा मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, मैं धन्यवाद करूंगा हमारी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का कि उन्होंने बिहार को जिस तरीके से स्पेशल पैकेजेस देकर, और मेरे लिए बिहारी होने के नाते खुशी की बात है, और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने हमेशा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ आगे बढ़ने का काम किया है। इस बजट में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को भी धरातल पर उतारने के प्रावधान दिए गए हैं। जहां एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें मजबूती देने का काम किया गया है, वहां पे ब्रिजेस बना के, वहां पे क्या कहते हैं मेडिकल कॉलेजेस की बात हो, वहां पे एयरपोर्ट्स की बात हो, तो जहां एक तरफ बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है, वहीं वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूत देने के लिए वहां पे अलग अलग राज्यों में गया हो, राजगीर हो, अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से टूरिज्म को भी वहां पे बढ़ावा देने के लिए प्रावधान किए गए हैं, जिस तरीके से बाढ़ की एक बहुत बड़ी समस्या जिससे हम लोग हमेशा दशकों से हम लोग परेशान रहे हैं, उसके भी समाधान का जिक्र इस बजट में किया गया है। तो मैं मानता हूं बिहारियों के लिए ये बहुत खुशी की बात है और पूरी बिहार की जनता प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करेगी। बट ओवरऑल भी अगर इस बजट को देखा जाए तो पूरी तरीके से समावेशी बजट है। पिछले 10 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था, एक मजबूत अर्थव्यवस्था का लाभ हमारे समाज के हर वर्ग को मिले, युवाओं को मिले, महिलाओं को मिले, किसानों को मिले, मध्य वर्ग के लोगों को मिले, इस बात का ध्यान भी इस बजट में रखा गया है। मैं मानता हूं कि एक बजट, ऐसा बजट जो युवाओं से जुड़ी सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी का भी जिक्र करता है। एमएसएमई सेक्टर को जिस तरीके से मजबूती देने की बात की गई है, इसमें एमएसएमई सेक्टर एक रीढ़ की हड्डी है हमारे देश की अर्थव्यवस्था को लेकर। तो मैं मानता हूं कि विकसित भारत के निर्माण में ये एक मजबूत नींव की तरह इस बजट को देखा जा सकता है। सवाल कि आप कह रहे हैं समावेशी बजट है, सारे सांसद जो निकले विपक्ष के वो तो कह रहे हैं आंध्रा बिहार का बजट है, ये सरकार बचाने वाला बजट है। इन लोगों को अगर अपने राज्य में अगर गरीब नहीं दिखते, अपने राज्य में अगर इनको किसान नहीं दिखते, अपने राज्य में इनको मध्य वर्ग के लोग नहीं दिखते, अपने राज्य में इनको महिलाएं नहीं दिखती या युवा नहीं दिखते, तो मैं इनकी सोच के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जब इस वर्ग का जिक्र किया गया तो इस वर्ग से आने वाले हर व्यक्ति, भले वो किसी भी राज्य में रहता हो, उसकी सुविधा का जिक्र किया गया। जब आम आदमी की आमदनी को बढ़ाने का बचाव को, जो वो बचत करता है, उसको बढ़ाने का जिक्र किया, तो ये हर राज्य के व्यक्ति का जिक्र किया गया। पर अगर इसमें उनको उनके राज्य का जिक्र नहीं दिखता तो ये उनकी सोच हो सकती। तो आपने इस बजट पर लगातार ये प्रतिक्रियाएं देखी हैं, जो बजट आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया, जिसमें बिहार और आंध्र प्रदेश पर जिस तरह का फोकस रहा, जिस तरीके से तमाम करोड़ों रुपयों की परियोजनाओं का जिक्र किया गया, कई हजार करोड़ रुपए हाईवे के निर्माण में, तो कॉरिडोर के निर्माण में बिहार में लगेंगे, ये ऐलान भी वित्त मंत्री ने किया। और इस पर लगातार जब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जहां एक तरफ राबड़ी देवी कहती हैं कि झुंझुना पकड़ा दिया है बिहार के लोगों को, तो वहीं अब चिराग पासवान जो कि एनडीए का ही हिस्सा है, वो कह रहे हैं कि हमने मांग की थी कि या तो विशेष राज्य का दर्जा या फिर विशेष पैकेज दिया जाए, लेकिन विशेष पैकेज दिया गया है हमें, और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूं। लेकिन इसी के साथ मैं आपको जानकारी दे दूं कि आंध्र प्रदेश के लिए भी लगभग 15,000 करोड़ रुपए की जो है घोषणा, जो है पैकेज एक तौर पर, उसका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से किया गया है। शुरुआत से ही ये दोनों पार्टियां, चाहे फिर वो टीडीपी हो, फिर चाहे वो जेडीयू हो, कहीं ना कहीं एनडीए के सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मोदी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में ये कहा जा रहा था कि दरअसल जो मांग
की है वो तो सरकार को माननी ही पड़ेगी अगर सरकार को बचाए रखना है, अगर अपनी सीट को सुरक्षित रखना है, और उस दिशा में लगातार सरकार काम कर रही है। इसकी एक और प्रमुख वजह यह भी हो सकती है कि बिहार में आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और चुनाव लिहाज से भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो घोषणा बिहार के लिए सरकार ने की है ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जहां आपने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की जो रिएक्शन था इस बजट पर वो भी देखा, क्योंकि आंध्र प्रदेश के लिए उन्होंने मांग की थी और सरकार ने उनकी मांगे मानी है, ये उन्होंने अपने आप खुद से ये ट्वीट किया है। और वहीं बिहार में भी लगातार जो है वो कहीं ना कहीं जो एनडीए के नेता है कम से कम वो इस बात पर खुशी जाहिर कर रहे हैं कि सरकार ने बिहार पर विशेष फोकस करते हुए बिहार के लिए ये तमाम घोषणाएं की हैं। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।